تو دوستو آئیے آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کر رہے ہیں مولوی کے اسٹوڈنٹ 2022 میں ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح جگہ پر آیا ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ 2022 میں ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں اور فارسی میں جو سوالات آتے ہیں ساتھیوں، کس میں فارسی کا جو سوالات آتے ہیں ان سے آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں، وہ بھی 1 نمبر اور 2 نمبر سے نہیں، بالکل اور بالکل 10 نمبر سے آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں سوال، اور یہ سوال آپ کو 100% میں گارنٹی دیتا ہوں یہ سوال آپ کو پوچھے گا۔ آپ یہ مت دھیان میں رکھیں گے کہ یہ سوال نہیں آئیں گے اور نہیں پوچھے جائیں گے، اگنور مت کیجیے گا ساتھیوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کو اس کے کوسچن پیپر فارسی کا جو 2021 میں پوچھا گیا ہے ان کو میں آپ سبھی کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سبھی کو سمجھ میں آئے۔ تو چلیے ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو۔ تو آئیے ساتھیوں دیکھیں، یہ مولوی کا کوسچن پیپر 2021 کا فارسی کا کوسچن پیپر ہے، اور اس میں جو آپ کو میں روبرو کروانے جا رہا ہوں وہ کون سے سوالات سے ساتھیوں، تو یہ سوالات سوال نمبر 3 میں دیکھ رہے ہوں گے۔ کہہ رہا ہے شعراء ذیل میں سے کسی ایک سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ جی ہاں ساتھیوں دیکھیں گے یہاں 5 شعراء کا یعنی شاعر اسلام کا نام دیا ہوا، جیسے امیر خسرو دہلوی، علامہ اقبال، عمر خیام، بہار مشہدی، اس کے بعد ہے اپرج مرزا۔ ان کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تشریح کرنے کے لیے۔ تو چلیں گے ساتھیوں، ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ مت آپ بھروسہ رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے یا نہیں، کنفرم ہے کہ یہ سوال پھر آئے گا، پھر ایگزام میں ٹپکے گا۔ تو اسی لیے آپ سبھی خاموش ہو کر اور دھیان سے اس سوال کو دیکھیں اور کیا کہتے ہیں اپنے ایگزام کی بہترین تیاری کریں، اور اگر دیگر سبجیکٹ کی آپ نے ابھی تک تیاری نہیں کیا ہے تو ان کو جا کر اس چینل کے پلے لسٹ میں آپ کو مولوی اور سبجیکٹ 2022 کا پلے لسٹ مل جائے گا، اس میں آپ جا کر سارا سبجیکٹ دیکھ لیں کس ٹائپ سے کس میں کون سے سوالات آئیں گے۔ تو چلیے ہم آج کے فارسی کوسچن کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا ریکویسٹ ہے۔ کون سا سر؟ چھوٹا سا ریکویسٹ، اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو کوئی بھی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس چلے جائے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، بیچ میں ایک ایسا میں ٹرک بتاؤں گا جن سے آپ اگر ان کو نہیں بھی لکھیں گے تو کس ٹائپ سے آپ کو نمبر دے دے گا ان کو بھی میں بیچ میں بتاؤں گا، تو اسی لیے آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ تو چلیے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا ساتھیوں مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ کہہ رہا ہے یہاں دیکھیں گے ایک دیا امیر خسرو، علامہ اقبال، عمر خیام، سرمد، بہار اور مشہدی ایرج، ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں امیر خسرو کے بارے میں ساتھیوں کیا کہتے ہیں ان کا بیان میں سماعت فرما دیتا ہوں آپ سبھی کے سامنے تاکہ آپ سبھی دیکھ لیں گے۔ دیکھیے اتنا تو میں بتاؤں تو نہیں، پھر بھی اگر اس طرح بھی دکھا دوں تو پھر بھی آپ کا انشاءاللہ کام چل جانا چاہیے، پھر بھی چلیے تھوڑا تھوڑا میں ان کا ٹاپک بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں گے اس میں جو آپ کو پوچھے گا کہ اس کے مزاحمت کو بیان فرمانے کے لیے کس ٹائپ سے، تو کریں گے کیا لکھنا ہے کہ امیر خسرو دنیائے ادب فارسی میں اس شخصیت کا نام ہے جس پر اہل ایران و ہند جتنا بھی ناز کرے کم ہے، بالخصوص اہل ایران جن ہندوستانی شعراء کی عظمت کے قائل ہیں ان میں امیر خسرو فہرست ہیں۔ تو دیکھیں گے ساتھیوں اگر آپ شروع والے لائن میں اتنا سا لکھ دیں گے، ان کے علاوہ امیر خسرو کے زندگی کے بارے میں آپ اگر کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو جو آپ کے من و دماغ دل میں پھوٹتا ہے تو وہ لکھ دیں گے، تو انشاءاللہ اگر 10 نمبر میں یہ پوچھ رہا ہے تو 5 نمبر تو کوئی نہیں کاٹے گا۔ چلیے اب آگے بھی دیکھیے کیا ہے۔ امیر خسرو کا اصل نام عین الدین ہے، ان کی پیدائش ضلع ایٹا کے موضع پٹیالی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد سیف الدین چنگیزی فتنہ کے وقت دہلی آئے تھے اور یہیں کے ہو رہے۔ دیکھیں گے ساتھیوں یہاں سے کچھ آبجیکٹیو ٹائپ اور 2 نمبر بھی سوالات بنتے ہیں۔ تو امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا ساتھیوں؟ عین الدین تھا۔ ان کی پیدائش کون سے ضلع؟ تو ضلع ایٹا کے موضع پٹیالی میں ہوئی تھی، یعنی ضلع ایٹا نام تھا اور گاؤں کا نام پٹیالی تھا۔ ان کے والد کا نام سیف الدین چنگیزی تھے جو دہلی میں رہے اور وہیں کے ہو رہے۔ آگے کر امیر خسرو بچپن ہی میں بہت ذہین تھے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور شاعر و شاعری سے دلچسپی بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگی تھی، کچھ نہ کچھ نظم کرتے رہے۔ ایک بار اتفاق سے بغرا جاں کے دربار میں شاعر و شاعری کی محفل جمی۔ امیر خسرو نے خاص
धुन में नज़म पढ़ी। जैसे नहीं होता साथियों, मान लीजिए कहीं पर कोई मजलिस लगती है या फिर जलसा वगैरह हुआ करती है या मिलाद वगैरह हुआ करती है, तो उसमें बुलाया गया अमीर खुसरो को और इन्होंने काफ़ी अच्छी धुन में नज़म को पढ़ी थी। आगे कह रहा है शहज़ादा इतना खुश हुआ कि 1 लगन रुपये भर कर इनाम में दिया। यानी वहाँ का शहज़ादा था इतना न खुश हो गया कि उनको जो है 1 लगन रुपये, यानी लगन काब, यानी उसको लगन किसको बोलते हैं, काब जिसमें आटा वगैरह गोंदा जाता है, उनको भी उनसे कर उनको रुपया दिया। कर अमीर खुसरो का ताल्लुक बादशाहों और अमरा के दरबारों में था। आगे कह रहा कमोबेश 8 बादशाहों का दौर देखा है। अमीर खुसरो जो है साथियों कमोबेश यानी पूरा कन्फर्म के साथ नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि 8 बादशाहों का दौर देखा, मगर फितरतन उनकी तबीयत फ़िक्र व तसव्वुफ़ की तरफ ज़्यादा माइल थी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से बेपनाह अक़ीदत रखते थे। वह ख्वाजा साहब के मुरीद भी थे और ख्वाजा साहब भी अपने उस मुरीद ख़ास से उस कुदरत शफ़क़त मरूत रखते थे कि फरमाते थे कि अगर क़यामत के दिन खुदा पूछेगा कि क्या लाए तो अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। यानी कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इतने उनके मुरीद थे कि ये कह रहा है कि अगर ख्वाजा अगर पूछेगा मुझसे कि क्या कहते हैं, खुदा पूछेगा ख्वाजा निज़ामुद्दीन से कि क्या लाए हो तुम, तो मैं कह दूंगा अमीर खुसरो को ही पेश कर दूंगा। अब चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। तो देखेंगे साथियों उसके बाद क्या था कि अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। एक मरतबा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हिंदुओं की इबादत और इंसान का मंजर देख रहे थे कि दबी ज़ुबान से मिसरा निकला। यानी एक दफ़ा जो है वो अशनान का मंजर देख रहा था, कोई प्रोग्राम तो उनका मंजर देख रहा था, उसी समय ये मिसरा उनके मुंह से निकला था, हर कौमे रअस्त दीनी राहो क़िबला गाही। कह रहा ख्वाजा साहब की टोपी उस वक्त टेढ़ी थी। खुसरो ने बरजुस्ता कहा मन क़िबला रअस्त करदम ज़ तरफ कज कला है। अपने मुर्शिद के इंतकाल के बाद सियाह कपड़ा पहनकर मज़ार पर मुजावरी करते रहे। तकरीबन 6 माह बाद 725 हिजरी में इंतकाल किया और अपने पीरो मुर्शिद के पास ही मदफून हुए। आज पूरा हिंदुस्तान उनके लिए 100 गवार है। अब देखेंगे साथियों इस टाइप से आपका हमने उमर ख़याम के बारे में ख्याल पेश कर दिया, उनकी ज़िंदगी के बारे में वाक़िफ़ियत इजहार कर दिया। इनको आप देख लेंगे। आगे देखेंगे साथियों कह रहा उमर ख़याम, इनके बारे में भी आपको कह देगा पेश करने के लिए। देखे नहीं थे साथियों क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी एक पर लिखने के लिए, तो कोई ठीक है अगर मान लीजिए अब की बार वो नहीं पूछा, हो सकता है ये उमर ख़याम पूछ दे, तो सबको लेकर चलना। आगे देखेंगे कह रहा उमर ख़याम का पूरा नाम अबुल फ़तह इब्राहिम है। इनका पूरा नाम साथियों तो अबुल फ़तह इब्राहिम है। उसके बाद कह रहा है नशियापुर वतन था। कौन सा वतन था इसका, निशापुर वतन था। निज़ामुल मुल्क तूसी और हसन बिन सुब्बाह उमर ख़याम के साथ ही गुज़र रहे हैं। उसके बाद कह रहा तीनों में तय था कि हम में से किसी ओहदा पर फाइज होगा, वह अपने साथी को ऊंचा ओहदा अता करेगा। हसन इत्तेफाक से निज़ामुल मुल्क तूसी वज़ीर हुआ। आगे साथियों उसने हस्बो वादा उमर ख़याम को निशापुर की जागीरदारी अता की। उमर ख़याम अगरचे मामूली जागीरदार था, मगर अपने इल्म फ़ज़ल की वजह से क़द्र मंजिलत का मालिक था। सलातैन अपने करीब बैठाते और उलमा उसे हिकमत व फ़लसफ़ा में इब्न सीना का हमसर करार देते और फ़िक़्ह हदीस में इमाम वक्त मानते। उमर ख़याम की वफ़ात 517 हिजरी में हुई। आगे चलेंगे साथियों का उमर ख़याम ने वैसे तो सिनफ़ सुखन के हर सिनफ़ में ज़ोर कलाम दिखाया है, मगर रुबाई इसका ख़ास वस्फ़ है। इसका ख़ास वस्फ़ कौन सा साथियों, रुबाई। उसने रुबाइयों में अमरूज़ ज़माना के कमो बेश सारे मौज़ूआत पर बहस की है। उसका अंदाज़े कलाम जहाँ फ़ही माना है वहीं फ़लसफ़ा हिकमत से लबरेज़ है। इसका शायर का तासीर है कि इंसान नादान है। उसने शिकायत, ज़ाहिरदारी, रियाकारी, झूठ और फ़रेबी दही के मौज़ू पर
दही के मौजू पर पुरअसर रुबाइयाँ लिखी हैं। वह इंसान को ज़िंदगी का कदर और मसाइब से मुकाबला करने की तलकीन की है। वहीं ज़िंदगी में ऐश खुशी के बावजूद हवा व होश से दूर भागने की तलकीन करता है। उमर ख़याम के रुबाइयों की मकबूलियत का यह हाल है कि दुनिया की तकरीबन तमाम ज़ुबानों में उसकी रुबाइयों का तर्जमा हो चुका है। उसके नाम से सारी दुनिया वाकिफ़ है और दुनिया अदब फ़ारसी में अक़लीम सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। तो साथियों, इसमें आपका कितना हुआ? 2 ठो मैंने कर दिया उमर ख़याम के बारे में, और एक कौन था साथियों, उनको देख लेंगे आप। चलेंगे साथियों, मैं सोच रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल का भी इसी में कर दूँ। आपको कह देगा कि अल्लामा इकबाल के बारे में आपका क्या ख़याल है, उसके ऊपर एक मज़मून लिखेंगे। तो देखेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और देखेंगे कह रहा कि शायर मुशरिक़ अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1876 ईस्वी में बामकाम सियालकोट में हुई। अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। आगे MA तक वहीं तालीम हासिल की, फिर यूरोप गए, वहाँ PhD करने के बाद 1889 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में फ़लसफ़ा के प्रोफेसर हुए। 1905 ईस्वी में बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। 1923 ईस्वी में अंग्रेज़ी सरकार ने सर का खिताब दिया। चूँकि तबीयत मौजू पाई थी, इसलिए शायर व शायरी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था। इन्होंने फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में तबा आजमाई की। जब इन्होंने अपने लिए उर्दू का दामन तंग पाया तो फ़ारसी को पैगाम रसानी का ज़रिया बनाया। तबीयत में सूज़ो गुज़ार और कौम से दर्द ने ही उन्हें शायरी पर आमादा किया। चुनांचे वह खुद कहते हैं, ताबू बेदारी शवी नाला कुशीदम वरना इश्क कारिस्त के बे आह फ़गा नीज़ कुंद। फ़ारसी में उन्होंने कई दीवान छोड़े हैं। असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी ख़ास कर काबिल ज़िक्र हैं। अल्लामा इकबाल के जो शायरी हैं कौन कौन? असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी, ये इसका ख़ास कर काबिल ज़िक्र। हकीकत है कि अल्लामा इकबाल यकताए रोज़गार थे और मुमकिन है कि वह अपने मखसूस अंदाज़ बयान में रहती दुनिया तक यकताए रोज़गार हैं। ख़ासकर इस्लामी पैगामात को जिस मुअस्सर अंदाज में इन्होंने उभारा है। तो देखेंगे साथियों, अभी हमने कितना बताया? तो 3 चीज़ों को बताया। इनको आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो इनको गौर व फिक्र के साथ पढ़िए और इनको लिखने की कोशिश कीजिए। और देखेंगे साथियों, मैं जो बोला आप सभी को बीच में बताऊंगा तो अंतिम में ही बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखेंगे साथियों, अगर आप एग्ज़ाम में चीट करते हैं, देखेंगे वैसे आप कहेंगे कि सर एग्ज़ाम में चीट करने के लिए बता रहे हैं, तो इसीलिए साथियों, क्योंकि देखेंगे ये सभी सवाल एक छोटे मोटे इंसान मौलवी के स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप आलिम बन जाते हैं उनके बाद एग्ज़ाम देंगे, इनका तब काम आएगा, लेकिन आलिम जब हम बन जाएंगे तब तो एग्ज़ाम देने के लायक ही नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए साथियों, आप क्या कीजिएगा, वक्त नहीं है तो ये तो करना पड़ेगा। तो देखेंगे साथियों, अगर हम चीट करेंगे तो किस टाइप से इसको ले जाना है। देखिए, आपको जो मजमून कहेगा लिखने के लिए, क्वेश्चन पेपर में देखे ना साथियों, आपको 5 मजमून दे दिया था, 5 मतलब शायर का नाम दे दिया था, उस पर किसी को कह रहा था लिखने के लिए। अब जब गाइड खोलेंगे ऊपर में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। जब आप गाइड खोलेंगे साथियों, फारसी का ऊपर में लिखा हुआ रहेगा आपको मंजूमात। तो आपको क्या करना, जिस दिन एग्ज़ाम होगा साथियों, ये मंजूमात वाला पेज को ही आराम से फाड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये मंजूमात वाला जितना पेज है, कम से कम 3 या 4 पेज होगा साथियों, इनको आपको फाड़ लेना है। इनको आराम से आप फाड़ लीजिएगा और जैसे ही वहाँ पूछेगा किसी के बारे में, आराम से सही से ले जाइएगा साथियों, आप ऐसा न पकड़ा जाए। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, अगर आपको कह देगा अमीर खुसरू, तो धड़ाक से देखेंगे कि अमीर खुसरू कहाँ पर है। तो आपको ये फर्स्ट ही पेज में मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए अमीर खुसरू लिखा हुआ। तो धड़ाक से क्या करना, बस अमीर खुसरू को देखेंगे, पकड़ के आराम से छाप देना है और एग्ज़ाम में नंबर भी ठोक कर लेना है। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी, और ये जानकारी, ये पोशीदा जानकारी थी, इसीलिए आप दूसरों के पास शेयर न कीजिएगा, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आज कितने करवाया, अमीर खुसरू, अल्लामा इकबाल और उमर ख़याम, अमीर खुसरू और अल्लामा इकबाल और उमर ख़याम के बारे में ये तीनों का करवा दिया हूँ। आगे सरमद, बिहार और मशहदी इराज, और ये चारों के बारे में करवाएंगे। तो जी हाँ, तब तक आप हमें विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।